Hi, welcome to Sportsy. Let's talk sports. When we talk about sports, we've been talking about traditional sports. Talk about cricket, football, basketball, badminton, and so on and so forth. But a new kid on the block in the sporting fraternity has taken everybody by surprise, and that is esports. Yes, gaming is not new for us, and gaming has been there for quite some time. But the way esport market has exploded is phenomenal. Today, we are going to talk to somebody. He is a young kid. Nobody knew about him as well as his team 7-8 months back. And today they are the taste of the nation. They are the PMPL South Asia champions. I'm talking about Yogesh Yadav, aka Rocks from Galaxy Racer Cells. Please welcome Rocks. Let's talk esports. Thank you for watching. Thank you for liking and thank you for sharing. But please do subscribe to our channel Sportsy Says on YouTube and look at our social handles which also go by the same name Sportsy Says. Do subscribe and spread the word. Thank you. Hi Rox, welcome to Sportsy. Let's talk sports. Today we are going to talk about esport. We've been talking about sports with a lot of other athletes and everybody, but today I'm going to talk about esports. So I'm talking to a young kid who was playing games and playing at different level and a different zone, but in last 7 to 8 months there's a big shift happen, and from not known to a taste of the nation. People who are completely crazy about PUBG as a game started knowing what ROS is. We have a South Asia champion with the team Galaxy Racer Cells, Yogesh Yadav, also known as Rox. So Rox, welcome. And my first question to you is Cells to Galaxy Racer. Can you tell about this dreamlike journey that you had? Thank you for first of all, thank you for inviting me here and giving chance to interact with the audience. And talking about Cells to Galaxy Racer, it's been the journey has been amazing till now. Mm, we started with no name. We started with nothing. We were having nothing, and right now we working with one of the most prominent org from UAE. So it's an honor, and as well as it feels pleasure to work with them. And we are consistently working to just to uh, reach to put the org on another level to uh, you know to just grow together. And these are the goals we have for now. Right. Working with Galaxy Racer. So it's always feels good to be part of them. Nice. So मेरा question एक बहुत simple है. It's like, and again, the way of doing this show in English is basically the PUBG follower that we have all over India is a different breed. It's a new generation that we have. So there was a time 6-8 months back when you started playing. Not you started playing. You started coming up as a team. Then आपने बोला कि ये इसके साथ खेलूंगा, उसके साथ खेलूंगा. Then you had a journey of some other team approaching you to play for them. लेकिन आपने बोला कि नहीं, मैं मेरा टीम बनाऊंगा. I'll make my own team and work with my team members. So in a game like PUBG, where the 4 people are playing together and you are making your own team, how do you select your team? And अगर जरूरत पड़ी तो आपको वो सुटेबल टीम मेंबर कहाँ मिलते हैं और कैसे मिलते हैं? सीन क्या है, जैसे कोई भी स्पोर्ट्स रहता है, बीट क्रिकेट, जिसमें अपना 11 प्लेयर्स रहते हैं, हम 4 या 5 बॉलर्स रखते हैं, कि 1 कैप्टन एंड 4 बैट्समैन, और ऐसे टीम बनता है. सो सेम गोज विद पबजी. जो ई स्पोर्ट्स का सीन है, 4 प्लेयर्स का टीम रहता है. एक हमें आईजीएल चाहिए रहता है, हु लीड्स द टीम, and basically we need good assaulters, एक या 2 assaulters, and rest 4th guy plays support or something. So first of all हमें पता होना चाहिए what are our requirements, what kind of players we need, how things will work, like with 2 assaulters, 1 IGL and 1 support player. So as a first of all हम यही करते हैं, जो हमारा requirement है होता है वो देखते हैं. Then we start looking for
people with similar approach, with similar mindset. तो ऐसे Right. टीम बनता है कोई भी. अदरवाइज तो बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ जो स्टार्ट करते हैं, दे कीप ऑन टेक्सटिंग, जो ऑलरेडी सेटल्ड प्लेयर्स हैं या जिन्होंने अपना नाम बना रखा है, उनको टेक्स्ट करते Correct. हैं कि भाई मुझे टीम में ले लो, गिव अस अ चांस. तो ऐसा कोई भी चांस नहीं देता है. हाँ. इट्स लाइक कि आस्किंग इंडियन क्रिकेट टीम्स कैप्टन कि भाई मैं गली क्रिकेट खेलता हूँ और मुझे टीम में ले लो, ऐसा रहता है. They won't take because you haven't proven you are playing in your gully or something, your मोहल्ला, so ऐसा सीन रहता है. तो वही सीन है यहाँ पे भी. सेम अप्रोच रहती है. लोग जो ऑलरेडी सेटल ऑग्स हैं या प्लेयर्स रहते हैं, वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स के लिए जाते हैं. तो बहुत ही टफ रहता है न्यू प्लेयर्स के लिए वो स्पॉट लेना. तो ऐसा मेरे लिए भी जब मैंने स्टार्ट करा तो मेरे लिए भी आई स्टार्टेड एज अ रैंक पुशर. मेरे को जो आई यूज्ड टू प्ले फॉर फन, तो ऐसे करके मुझे टीम में तो कोई लेगा ये तो मेरे दिमाग में था ही नहीं. ऑब्वियसली नहीं लेगा. आई वाज बिट मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इन अर्ली स्टेज. सो ये सीन था. एंड देन मैंने अप्रोच भी नहीं करा किसी को कि भाई मुझे ले लो. तो मेरे को खुद रियलाइज हुआ कि भाई ऐसे तो कोई भी नहीं लेगा. एक सिंपल कॉन्सेप्ट है ये तो, until unless you prove yourself. तो ऐसे करके I started forming team. I started looking for player with similar mindset. You said that you were mature at a very young age and understood that कि मेरे को I'll start my own work, I'll start my thing, and I think that's where the whole leadership journey started because you are the leader in the pack. How did that happen? आपको कैसे लगा कि मैं लीडर हो सकता हूँ? What are those qualities? सीन ये था कि आई एम द यंगेस्ट वन इन माय टीम. ओके, सो मेरा जो भी प्लेयर्स हैं बाकी टीम, तो दे स्टार्टेड व्हेन वी स्टार्टेड दे यूज्ड टू लीड द टीम. ठीक है, जो आईजीएल का रोल रहता है तो वो सारा सबने ट्राई करा. स्टार्टिंग विद हर्षित एंड रणदीप एंड जो मेरे प्लेयर्स हैं, तो उन सब ने ट्राई करा. पॉइंट आया वो उनसे नहीं हो पाया. लाइक भाई ये काम मेरे से तो नहीं होना, यू ट्राई ऐसे करके रहता है. ठीक है, तो वो सीन होता था एट द लास्ट. फिर वो मेरे ऊपर आया तो आई स्टार्टेड एडेप्टिंग थिंग्स, और वो चीजें हमारे लिए फेवरेबल रिजल्ट्स आया उसके थ्रू when I started leading the team. So that's how it started. And फिर अभी तक I'm leading the team. I'm making stats और सारा कुछ रहता है. So with the help of my players, so things are working well for us. And I have heard from some places that Captain Cool MS Dhoni is one of your favorite athletes or your favorite players. So do you think आपके leadership style में और उनके Captain Coolness में कुछ similarity है? Or is it inspired? There is an inspiration at different level? Obviously, he's one of the most trusted and one of the most cool captain we have. So मैं starting से उनको देखता था. अभी तो I don't get time. अभी तो बहुत ही गलत सीन हो चुका है. तो स्टार्टिंग से देखता था. I used to follow him and सुरेश रैना too. तो these two were my favorite. अभी भी हैं, ऐसा नहीं है. मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन तो एक अलग ही वाइब आती है जो जिस तरह से वो टीम लीड करते हैं. तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे कूल काम रहने का, नो मैटर हाउ थिंग्स आर, कैसा सिचुएशन है. तो वो चीज मैं भी ट्राई करता हूँ. एंड अभी तो आई एम इन लर्निंग फेज, तो वो सारा एडेप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. स्टिल तो अभी तक तो कोई ऐसा बहुत चिल सीन रहता है टीम में भी, कोई वैसा not a big shot. And I'm sure that you know that my MS Dhoni Mahi is a big PUBG fan and he plays quite often. Yeah, I've got a few friends. Like Arjun is my friend, Arjun Tendulkar, and Right. Yuzi Chahal Yuzvendra. So I got to know from them कि Hardik, Mahi, and these all play PUBG. Manish Pandey, Yuji, they're all on the lot of time. So I also get to play with them. So, but yeah, it is. Yeah, but personally, I know two of them only. So excellent, very good. So, okay, you are still very young, and but my question goes to more younger days. At what age you actually started playing? और घर वालों ने कभी परेशान नहीं किया क्या गेमिंग कर रहा है करके?
अभी ये तो बहुत ही क्या बोलूँगा, बहुत ही अलग सीन था क्योंकि आई डोंट लिव विद माय फैमिली, मैं अलग ही सिटी में रहता हूँ। आई केम हियर फॉर स्टडीज़, फॉर माय फर्दर हायर स्टडीज़ एंड स्टडीज़ के दौरान मेरा एक फ्रेंड था, ही टोल्ड मी अबाउट पबजी एंड वो पहले से खेलता था। तो भाई टाइम पास के लिए मैं भी स्टार्ट कर दिया। अब मेरी फैमिली को क्या पता है, दे तो नोज़ कि भाई मैं तो यहाँ पढ़ रहा हूँ। तो तो ये थोड़ा सीन था और ऐसे करके मैंने स्टार्टिंग में मज़े के लिए स्टार्ट करा एंड लेटर ऑन आई स्टेप्ड इनटू कॉम्पिटिटिव एंड फिर वहाँ से हमारा पीएमसीओ भी हो गया। तो वो मेरे फैमिली को पता नहीं था कभी भी कि मैं पीएमसीओ खेल रहा हूँ, जो इंडिया का पबजी मोबाइल सीन का बहुत ही करेक्ट। बड़ा टूर्नामेंट है। और पीएमपीएल के बारे में भी नहीं पता था जब तक मेरे को जो लैन इवेंट होने वाला था गुरुग्राम में, वहाँ के लिए मुझे नहीं बुलाया गया। आई टोल्ड माय ब्रदर क्या था कि मैं घर गया हुआ था। वैसे तो हाँ। यहाँ रहता हूँ नोएडा में फैमिली से अलग। तो मैं घर गया था कुछ दिन के लिए, कुछ फेस्टिवल था, शायद होली था। तो एंड फिर मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो आई सेड कि हाँ आई एम गोइंग बैक बट आई वाज गोइंग टू गुरुग्राम टू प्ले पीएमपीएल। आई टोल्ड माय हाँ। ब्रदर कि मैं उधर जा रहा हूँ ऐसे खेलने के लिए एंड लेट्स सी क्या होता है। तो ये सीन था, फैमिली को मेरे कभी पता ही नहीं था एंड जब अ, बहुत ही जब व्हेन वी वर अबाउट टू विन तब आई टोल्ड देम कि भाई ऐसा कुछ सीन चल रहा है, आई एम नॉट इन नोएडा, आई एम इन गुरुग्राम एंड प्लेइंग पीएमपीएल ओवर हियर। तो ऐसा सीन था। तो अभी तो दे आर सपोर्टिंग मी सिंस आई एम वर्किंग फॉर जीएक्सआर, सो करेक्ट। दे आर सपोर्टिंग। सो लाइक इसमें से एक ही चीज लोगों को बोलनी है कि अगर ये लेवल पे जाते हो तो कुछ तो छुपाओ, वरना मत छुपाओ, घर वालों को बोलो कहाँ जा रहे हो। हाँ, घर वालों को Yeah. लाइक बताना नहीं, माय ब्रदर वाज वेल अवेयर ऑफ इट, मैंने Okay. बता दिया था उसको। तो ऐसा नहीं है कि वो हाँ, निकल गया बिना जैसे बता। जैसे पबजी में आपका somebody is watching your back, so your brother was watching your back. I think that is या good. You had a या team, good या teammate. So, माय yeah. So when was the time आपको लगा कि मैं अभी प्रोफेशनली खेल सकता हूँ? वो तो अभी तक अभी तक भी रियलाइज नहीं हुआ है, अभी सोच रहा हूँ। तो क्या था कि in our initial days we were playing for free as in we were not being paid, Right. unlike other players जो भी रहते हैं the working, वो स्टार्टिंग से ही किसी न किसी ऑर्ग के साथ या हम्म। यू नो किसी इस ई स्पोर्ट्स टीम के जो रहता है ऑर्ग के साथ वर्क कर रहे थे, दे वर बीइंग पेड। तो उनके हम्म। पास एक सपोर्ट रहता है, बैकिंग रहता है कि कुछ भी रहता है। तो इनिशियली हमारे साथ कुछ था नहीं, ठीक है, वी वर वर्किंग, वी वर प्लेइंग और ऐसा करके अभी व्हेन वी हैव पार्टनर्ड विद जीएक्सआर, सो आई हैव स्टेबल फॉर द टाइम बीइंग, आई हैव स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम। सो Right. यू नो और मेरे को कोई प्रेशर नहीं है, आई कैन प्ले फ्रीली एज आई एम अर्निंग। सो अभी these are the things which made me to play it professionally, to make it full time और ऐसा करके। हम्म। सही। और now you are earning and I think everything is very, very good and congratulations for that. लेकिन जब आपने चालू किया तब devices must be a issue. कहाँ पे खेले, कौन से डिवाइस पे खेले? So what is your favorite device and what कौन से ऐसे डिवाइस है जहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता लेकिन फिर भी अच्छा खेल सकते हैं? डिवाइस की बात आती है तो 20 के 25 की रेंज में बहुत सारे जो स्नैपड्रैगन, अच्छा थोड़ा टेक्निकल हो गया है लेकिन चलेगा स्नैपड्रैगन चलेगा। 820 855 की डिवाइसेस 20-25 के रेंज में मिलती हैं, दे आर हाँ। प्रीटी गुड। तो आई हम्म। यूज्ड टू प्ले ऑन वन प्लस इन माय अर्ली डेज, बट मैंने कॉम्पिटिटिव के लिए भी कैसे भी अपना सेविंग से लिया था। तो एक हम्म। पॉइंट आया व्हेन मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई एंड्रॉइड फोन्स आर नॉट इनफ फॉर कॉम्पिटिटिव, ऐसे था। ओके। इट्स अ हार्श रियलिटी, मतलब क्या रहेगा कि जो भी रहता है लास्ट फोन लैग करने लगा, नो मैटर इफ यू हैव 12 जीबी 855 प्रोसेसर और यू आर equipped with Asus ROG 3 or something, you know, a big राइट। names, but का ये सीन है, फोन लैग करता है। सो मोस्ट आई मीन 95% और 98% जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर रहते हैं, दे आर ऑन आईफोन्स। So for ओके। competitive, iPhone, Apple iPhones are the best, and
I'm having one too. Excellent. So Rocks, yes, I see. When so we understood about devices. Now let's get into the game a little bit. What is your favorite device there? What's your favorite weapon there? And the favorite map in the competition? जहाँ पे लगता है ये मेरा घर है. अभी के लिए फिलहाल के लिए तो it keeps on changing. जहाँ पे हम ज्यादा अच्छा करते हैं तो वो मेरा फेवरेट हो जाता है कि भाई अब इसमें तो मजा ही है. ये रहता है कि जब भी हम आ रहे हैं तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई ये मैप है, यहाँ तो हम अच्छा ही करेंगे. तो एरेंगल एंड हाँ, एरेंगल एंड सैनोक आर टू ऑफ माय फेवरेट मैप्स जो इनिशियल से बहुत ही पुराने मैप्स हैं. तो और लोड आउट क्या रहता है, जो वेपन्स का रहता है, वो थोड़ा मेरे पास चॉइसेस कम रह जाती हैं क्योंकि मैं अपने वेपन्स जो रहते हैं फ्रंट असॉल्टर्स या उनको डोनेट कर देता हूँ. ऐसा नहीं है कि मारता नहीं है कुछ भी, लेकिन हाँ एक रहता है उनके पास जो उनका काम है फ्रंट असॉल्टिंग का या सारा कुछ उनके पास अच्छे वेपन्स रहेंगे सारा तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे. तो मैं जो भी मेरे पास अवेलेबल रहता है मोस्टली उजी और M762 बैरल, तो ये इवन बोथ आर क्लोज रेंज गन्स, लेकिन यही मेरे पास रहती हैं. सो दीज आर माय फेवरेट weapons. Yes. And so that means you are a true leader, which gives the armor to your teammates to make them succeed and make sure at the end of the team wins. Actually, I'm trying to be. Very good. I think it's a good thing. So, Rox, one more question is: if you're not gaming, what is this? What is that you're doing? I would have been either doctor or lawyer. Oh, nice. वो तो. Yeah, because I wanted to be an engineer, but my brother was already into it, so I started doing medical, and I was doing well. But एक मुझे ऐसा लगता था कि भाई इसको करते करते 10-15 साल हो जाएंगे, कभी डिग्री मिलेगा, कभी क्लिनिक सेटअप करना रहेगा, हॉस्पिटल, तो भाई तब तक तो मेरा एज हो जाएगा, तो वो पैसे कमा के क्या ही करूंगा. तो ये सारे थॉट्स थे जो मेरे माइंड में चलते रहते. सो दिस वाज द रीजन आई गिव अप ऑन मेडिकल. एंड तो फिर मैं देखता तो भाई जल्दी किस में रहेगा. सो I started preparing for CLAT, and वो मेरा अच्छा खासा गया था. So I would have been a lawyer, but वो स्टडीज तो अभी बहुत स्लो चल रहा है. स्लो एज इन बहुत कम टाइम दे पा रहा हूँ, तो अभी फिलहाल के लिए तो यही है जो भी है. ओके. एंड ई स्पोर्ट ये नया जनरेशन स्पोर्ट है. ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में से कौन सा स्पोर्ट खेलते हो और जो आपको बहुत पसंद है, सिर्फ देखना नहीं, खेलना भी? अभी तो when I was in class 10 तक तो I used to play cricket यहाँ पर along with my brother, and बस वो क्रिकेट ही खेलता था. बस मेरे भाई को क्योंकि क्रिकेटर बनने का वो था कि भाई मेरे को बनना है, तो वो अपने साथ साथ फ्री में मेरे को भी भाई कि चलो अकेला तो बॉलिंग बैटिंग खुद से तो कर नहीं लेगा, तो मेरे को भी भाई उसके साथ लगे रहना पड़ता था. तो क्रिकेट में काफी इंटरेस्ट था. नाइस. लेकिन एक लोगों को लगता है कि ई स्पोर्ट खेलते हैं, गेमर चेयर में बैठे हुए आराम से खेलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बट as I know, it's a very tiring game when you play. It's actually very tiring. It's and very exhaustive as well. So इसके लिए अलग टाइप के एक्सरसाइजेस लगते हैं. So आप ऐसे कौन से फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथनिंग के एक्सरसाइज करते हो जो एक्चुअली हेल्प करता है? लोगों को बहुत इजी लगता है ये स्पोर्ट्स, प्लेइंग विद सिटिंग एट अ प्लेस एंड प्लेइंग मजे से, बट ये इसका रियलिटी कुछ और है. क्यों रीजन इसका ये कि इट्स अराउंड 4 अभी, एंड जो क्या रहता है बहुत ही बहुत ज्यादा इस पे एक तो टाइम इन्वेस्ट करना रहता है, 8 से 10 घंटे खेलना ही रहता है. देन यू हैव गॉट टीम मीटिंग्स, देन यू हैव टू टॉक विद कोच और सारा सेट. सो एंड 14-15 आवर्स ऐसे ही चला जाता है, एंड देन यू आर लेफ्ट विद अराउंड 8 और 9 आवर्स, और उसमें भाई तुमको 6 घंटे सोना भी रहता है. सो फॉर योर पर्सनल लाइफ यू यूजुअली गेट 2 or 3 आवर्स फॉर.
तो बहुत ही एक तो ये क्या बोलता हूँ, दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी। अभी पहले कभी ऐसा इतना लगता है अभी कि हाँ भाई बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ ऐसा करके। और तो जो 2-3 घंटे रहते हैं यूजली आई गो एंड वॉक इन पार्क नीचे एंड और आई डू सम एक्सरसाइज ऐसे ही करके कुछ भी जो स्कूल में क्लास थर्ड फोर्थ में सिखाया गया था ऐसे कोई सारा चलता रहता है। हाँ, लेकिन और ऐसा मेंटल स्टेट के लिए कुछ करते हो? पूरा दिन गन लेके धाड़ 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 करना है, तो थोड़ा मेंटल कामनेस के लिए कुछ करते हो? उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आई ट्राई टू गेट प्रॉपर स्लीप, मतलब जब भी टाइम मिलता है तो सो जाने का। उससे क्या रहेगा, जो ब्रेन रहता है इट वर्क्स द वे करेक्ट। इट नीड्स टू बी। क्योंकि इट्स नॉट कि भाई तुम 15 घंटे खेल रहे हो तो यू विल गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स। नो, इट्स नॉट लाइक यस, दैट। इफ यू आर प्लेइंग एंड प्रैक्टिसिंग फॉर 4 hours बट योर स्टेट ऑफ माइंड इज प्रीटी गुड, देन यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो उसके करेक्ट। लिए प्रॉपर स्लीप एंड प्रॉपर रेस्ट जरूरी है। तो जब भी मेरे को टाइम मिलता है 2 घंटे 3 घंटे मैं एक्सरसाइज वगैरह करने को जो मैं सो जाता हूँ। चलो गुड। मतलब ये तो मिथ है कि कुछ करना नहीं पड़ता है, बहुत करना पड़ता है टू मेंटेन योर फॉर्म, मेंटेन योर मतलब आपके हाथ रिस्ट बराबर चाहिए, आई साइड बराबर चाहिए, नेक बराबर चाहिए, द लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड। सो या एक्चुअली प्रॉपर सारा कुछ ये सारा जरूरी रहता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम पे जो रहता है खाना खाने का, वो मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है अभी तक, और बहुत सारे गेमर्स से नहीं हो पाता है। बिकॉज इनके यहाँ अगर लाइक पीपल आर लिविंग विद फैमिली गेमर्स, तो खाना 7 बजे रेडी हो रहा है बट दे हैव गॉट मैचेस, दे वोंट बी प्ले, दे वोंट बी एबल टू हैव फूड। सो ऐसा सारा रहता है बहुत सारा। ऐसा नहीं कि थिंग्स आर वेरी इजी, लोगों को जो लगता है इट्स टोटली अ मिथ कि भाई घर पे बैठे मस्ती से खेल रहे बराबर। हैं, दे आर गेटिंग पेड, दे आर गेटिंग पेड। तो ऐसा करके थिंग्स हर स्पोर्ट्स में रहता है। करेक्ट करेक्ट एग्जैक्टली। सो आपने जस्ट मैसेज आप बोल रहे थे कि आप कोच होता है एंड यू हैव स्ट्रेटजी मीटिंग। सो सिंस यू आर प्लेइंग फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस, यस टिल द टाइम यू कम फॉर अ बूट कैंप एंड टुगेदर इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप सब जगह अलग अलग टाइम पे खेलते हो। सो हाउ डू एक्चुअली हडल एंड सेट द टीम गोल्स? एक दूसरे को एनकरेज कैसे करते हो कि एक पीछे हमेशा मरे जा रहा है, आपका कोई दोस्त, आपका कोई टीममेट, तो एनकरेज कैसे करते हैं एक दूसरे को? उसका क्या रहता है, सपोज हमारा कोई मैच अच्छा नहीं गया या किसी बंदे से मिस्टेक हो गया, तो फॉर एटलीस्ट 2 or 3 minutes दैट विल बी गेम रेज। गुस्से में एक दूसरे को भाई तू ये करा वो करा। आफ्टर 2-3 मिनट्स जो वो रहता है, शांति से लोगों को खुद समझ आ जाता है प्लेयर्स को, हाँ भाई ये मेरे से मिस्टेक हुई। अगर दो के बीच में चल रहा है तो थर्ड वन विल कम एंड कि भाई नहीं तूने ये करा, तो ऐसे करके चीजें बहुत ही कामली डील करी जाती हैं। एंड उसके बाद फिर जो भी नेक्स्ट मैच रहता है कि नहीं भाई चलो हो गया एक खराब, नेक्स्ट से फिर से कम बैक करेंगे एंड फिर जो हमारे स्टेट्स हैं ये हमको करना है, ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सो ऐसा रहता है। वी हैव गॉट आफ्टर मैच डिस्कशंस ऑन डिस्कॉर्ड और समथिंग। तो ये सारा करके बहुत ही बैलेंस्ड रहता है टीम में, और हेल्दी एनवायरनमेंट रहता है, प्रॉपर डिस्कशन एंड टाइमली इंटरेक्ट करना। एंड टीम है तो झगड़े होते रहेंगे, लेकिन मेरे को वहां पे नहीं जाना है। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, बिकॉज़ दैट्स अ इंटरनल टीम मैटर व्हिच आई डोंट वांट टू गेट टू, बट आई एम श्योर दैट एट द वे यू आर प्लेइंग यू हैव टू वॉच ईच अदर्स बैक। सो वो झगड़े वो 2 मिनट के लिए होते हैं, ज्यादा चलते नहीं हाँ, है। वो बेसिकली वो उतना ही रहता है, दिल पे कोई नहीं लेता। अगर वो ले जाता है तो वो बहुत महीने फिर वो सारा होता है ना, रिफ्ट आ ही जाता है ऐसे। हाँ। सो एक मेरे को हमेशा लगता है, बिकॉज मैं भी गेम खेलता था बचपन में, अलग अलग इस पे गेमिंग के यार, एक टाइम पे बोर होता है। सो यस आई नो दिस इज अ प्रोफेशन फॉर यू, नाउ यू आर थिंकिंग इट वेरी सीरियस, यू लव इट, बट आपको कभी होता है कि अभी मैं बोर हो गया हूँ, बहुत खेल चुका हूँ, मैं बोर हो गया हूँ? वो तो ऐसा रहता है जिस दिन ऐसा फील होना रहेगा तो यू नो वो इंटरेस्ट कम हो जाएगा। जब आपको लगेगा तो आप उतना डेडिकेशन से नहीं करोगे। करेक्ट। तो ओवर ज्यादा भी खेलना इज नॉट अ गुड थिंग कि आप भाई खेलते ही जा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आ ही जाता। एक्सेसिव जो अमाउंट रहता है किसी भी चीज का इज नॉट गुड। तो करेक्ट। आपको यू हैव टू सेट योर गोल्स कि भाई मेरे को इतना घंटा खेलना है, आई हैव टू स्पेंड दिस मच टाइम इन प्रैक्टिस और दीस आर द स्किल। तो वो सारा हमारा एक प्रॉपर रहता है कि हमें इतना खेलना है। एंड रेस्ट फ्री टाइम में वो आई यूजुअली वॉच सम कार्टून एंड ऑल, तो बहुत चिल सीन रहता है ऐसे करके। बोर तो ऐसा कोई सीन नहीं है बोर होने का। एंड
मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, बिकॉज आई थिंक यू आंसर्स वन पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी चीज एक्स्ट्रा मत करो. सो it that we know there's so many kids now getting hooked to the devices and playing so much of they are on the device and playing a lot of games. So आपको क्या लगता है कि कौन से उम्र से खेलना चाहिए एंड कितना खेलना चाहिए, मतलब व्हाट इज द मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द किड्स? पहला क्या रहता है कि फर्स्ट थिंग इज आपको अपना स्टडीज एटलीस्ट कंप्लीट करना चाहिए, जो कॉम्प्लीमेंट्री रहता है 10th 12th तक, तो एटलीस्ट इस पे तो अगर वही आप उस पे फोकस नहीं करोगे तो बिकॉज क्या रहेगा, गेमिंग रहता है कोई भी स्पोर्ट्स रहेगा, सपोज एक गेम है ये पबजी, इट वॉन्ट लास्ट फॉर एवर, कि आप 5 साल खेल सकते हो, यू कैन प्ले 3 years 4 years, you have to think and decide yourself कि what you will be doing after 15 years. You have to think of your future कि भाई 10 साल बाद अगर PUBG नहीं होगा तो what I have to do. So उसके accordingly you have to focus on your studies कि भाई हाँ मेरे को ये करना है, I have to go for this degree, for this ये सारा करके, तो ऐसे करके आपको goals अपने set करने रहेंगे. एंड जो भी न्यू कमर्स हैं या सारा दोस्त वो वेरी यंग लाइक मी, तो मेरा बस इतना ही कहना है कि उसको स्पेसिफिक टाइम दो, सेट योर गोल्स की, और एक ड्यूरेशन सेट कर लो कि भाई 1 साल तक मेरे को ट्राई करना है, अगर मैं थोड़ा अपने स्टडीज पे 1 साल के लिए कम फोकस कर सकता हूँ, एंड आई गिव दिस टाइम टू पबजी और समथिंग विच एवर गेम यू लाइक, एंड 1 साल के अंदर अगर रिजल्ट्स आते हैं तो दैट्स फाइन, अदरवाइज आई विल स्टिक टू माय स्टडीज एंड will do whatever my family wants. तो ऐसे करके we have to set our goals and priorities, and चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से डील करना रहेगा maturely, तो things will be easy, else बहुत सारा mess up हो जाएगा, won't be PUBG में भी तुम्हारा 5 साल से लगे हो, 2 साल से 3 साल से कुछ हो नहीं रहा है, स्टडी भी इस पे भी फोकस कर नहीं रहे हो, you will get depressed. करेक्ट. तो लोगों को समझना चाहिए ये सारी चीजें. Very very well said. I think it's very important. I think it's very important what you're saying is our understanding, because we get to hear so many news about बच्चों ने हजारों लाखों रुपए खर्च कर दिए गेम के ऊपर पेरेंट्स को बिना बताए क्रेडिट कार्ड यूज कर करके, एंड बाद में पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई क्या कर रहा है, एटलीस्ट क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, बाहर जाके भाग दौड़ तो करता है. सो व्हाट डू यू हैव टू टेल द पेरेंट्स जिन जो बच्चों को बोलते हैं कि ऐसा मत करो, इससे कुछ नहीं होगा? सो नाउ एज अ प्रोफेशनल प्लेयर व्हाट डू यू हैव टू टेल देम? मेरा कहना यही है कि पेरेंट्स को मेरा कहना नहीं रहेगा, बिकॉज कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन, जो ई स्पोर्ट्स अपना इंडिया में इतना ग्रो नहीं हुआ है, एंड सारे पेरेंट्स जो भी रहते हैं दे आर नॉट वेल अवेयर ऑफ इट. सो पेरेंट्स को मेरा कहना नहीं है, मेरा कहना उन लोग को है जो खेल रहे हैं इस चीज को, जिसको नॉलेज है, को एंड प्रीच योर पेरेंट्स, बताओ उनको कि भाई ये चीजें हैं, this is the amount people players are earning, तो that's you जो उनको समझा सकते हो. They won't go and research for you कि भाई अच्छा ई स्पोर्ट्स में इतना कैसे कमाया जाता है, कैसे what are the salaries being paid, तो your parents won't do. And उनका करना भी justified नहीं रहेगा, because they've got their own work to do और सारा कुछ. So when you are into it, you gotta go and explain things, make them understand. You have to make deals कि भाई मेरे को इतना टाइम दे दो प्लीज, एंड मेरे को समझना चाहिए, I'll get results for you. तो ऐसे करके प्लेयर्स को करना रहेगा, एंड पेरेंट्स को ऑलवेज शेयर गुड बॉन्ड विद द पेरेंट्स, उनको अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए, वो समझ सकें, तो वो चीज अच्छा रहेगा. एंड इफ पेरेंट्स आर वाचिंग तो उनको तो भाई यही है कि भाई let them do whatever they want, but for a specific period of time. Don't let them get जो पूरा रहता है कि कहीं का भी ना बचे, वो ऐसा करके keep an eye on them. Correct. मेरे पेरेंट्स को तो नहीं पता था. I think it's very important what you're saying is let them be, and at the same time the बच्चों को भी खुद का रिस्पॉन्स समझना चाहिए कि what are they doing and how they are doing. So see, आपने जैसे बोला कि education is very important in the whole process, because there's always needed for plan B. So what is your plan B?
मेरा क्या रहेगा, I'm my studies, I'm doing studies along हम्म, with gaming, so मेरा चल रहा, graduation हो जाएगा and um, I've got plan B, मेरे studies के साथ continue करना and अगर अगर ये चीज़ वर्कआउट नहीं करती है तो I'll be you know studying well and will get a 9 to 5 जॉब as usual जो रहता है, जो अपने पेरेंट्स को चाहिए रहता है, तो वो करूँगा जाके जब ये काम नहीं करेगा, और अदरवाइज़ I'll work with my family, I've got family business, ऐसा okay. करके। And how about adapting to new game? अभी तो PUBG है, that there's every बोलते हैं कि हुँ, ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, और probably shelf life भी होता है हर एक चीज का. हुँ। So have you thought of trying out some other games which are the backups, और अभी तो सोचा ही नहीं, अभी सिर्फ PUBG पे फोकस करना है. बैकअप अभी उसको वो जस्टिफाइड नहीं होगा अगर अभी Correct. बैकअप बना लूँगा, क्योंकि इट्स इन ग्रोथ स्टेज अभी भी Yes. पबजी तो। और रही बात बैन का, तो थिंग्स आर सॉर्टेड अभी जहाँ तक है। Yeah. लेकिन हाँ, फॉर बैकअप तो नहीं, लेकिन सीखने के लिए आई प्ले अदर गेम्स टू, पीसी गेम्स और सारा करके वो अलग Yes. ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, एक अलग ही Yeah. रिलैक्सेशन रहता है, तो वो सारा डू इन फ्यूचर। Once a gamer, always a gamer. So yeah. So Abhi, my this show that I have is Let's Talk Sports. We've been talking about a lot of traditional sports, जिसके लिए Asian Games known है, Commonwealth Game known है, and Olympic is the biggest thing that we have. And हम लोगों ने देखा है अभी e-sport has been introduced into Asian Games, and it is the talks are on to have esports in part of Olympics. So आपने अभी जो इंडिया का लोगो अपनी जर्सी पे पहना हुआ है, so how do you have you visualized yourself playing the Olympics or the Asian Games and representing your country in esport? I haven't thought of Olympics or something, but abhi I just finished with World League, तो it was Yes. you know बहुत ही, जो कभी सोचा भी नहीं था कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हम वर्ल्ड लीग पे, इंटरनेशनल स्टेज पर। Correct. We were among the top 7 teams Yes. representing India on world level, तो वो भी बहुत ही एक ऑनर था एंड Hmm. प्राउड फील होता है जब व्हेन आई गेट टेक्स्ट फ्रॉम पीपल सेइंग कि आप अच्छा कर रहे हो वर्ल्ड लेवल पे, यू आर मेकिंग योर कंट्री प्राउड। तो ऐसा ही आगे भी यही प्लान है कि जो भी Hmm. इंटरनेशनल इवेंट्स रहेंगे उस पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का और कुछ ना Yes. कुछ I करने का। I think वो बहुत अच्छा फील होता है that इंडिया की जर्सी कोई आपको देता है and आप खरीदते नहीं हो. जो what you have done is you have earned that jersey and not bought from a shop. So that is a different feeling, and congratulations for that wonderful journey that you had. So I had one more question around the game and what you do is, what is that you want or do you wish that is different in the esports industry? कि क्या चेंज कर सकते हो? क्या मेरा मानना क्या रहेगा कि when we talk about esports, तो उसका सबसे बड़ा एस्पेक्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है ऑडियंस। हम्म, ओके, नो व्यूअर्स नो esports नो गेम और समथिंग, करेक्ट. कुछ भी नहीं रहता है बिकॉज। तो मेरा मानना ये है कि जो अपना ऑडियंस है कहीं का भी, दे हैव टू बी बिट मैच्योर। उनको प्लेयर्स को इफ दे आर प्लेइंग वेल इट्स ओके, यू आर सपोर्टिंग देम, इट साउंड्स नाइस एंड कूल। इफ दे आर नॉट प्लेइंग वेल या अच्छा नहीं जा रहा है, तो दे आर ऑलरेडी एक रहता है काइंड ऑफ डिप्रेशन रहता है या कुछ भी, कि उनको ऑलरेडी दे आर गोइंग थ्रू मेंटल स्टेट जिसमें वो खुद से अपने आप से झगड़ रहे होते हैं कि भाई मेरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं गया, लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग मी, और मेरा फैमिली देख रहा है और सारे लोग देख रहे हैं, एंड मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं करा है, तो वो बंदा एक तो खुद से ट्राई करेगा कि भाई नेक्स्ट डे मेरे को अच्छा। अब उस पे आप इफ यू कांट अप्रिशिएट, इफ यू कांट मोटिवेट, उसको जाके टेक्स्ट करना कि भाई तुम ये हो वो हो, तुम अच्छा नहीं कर सकते हो, दैट्स समथिंग व्हिच आई डोंट लाइक अबाउट ई स्पोर्ट्स। तो मेरा यही है कि कुछ कुछ भी चेंज कर सकता है या कुछ भी चेंज हो सकता है, तो इट विल बी बेटर कि अपना जो ऑडियंस रहेगा वो थोड़ा मैच्योरली ई स्पोर्ट्स के साथ डील करे। हम्म, ऐसा रहता है जैसे क्रिकेट टीम में भी रहता है कि भाई अगर
फाइनल्स में सेमीफाइनल्स में हार गए तो इंस्टेंटली तुम जाके ये नहीं बोलो कि भाई धोनी रिजाइन कर दो, तुम बेकार लेकिन प्लेयर हो या ऐसे। वो हो चुका है अर्ली, लेकिन हाँ आप बहुत छोटे थे, प्रॉब्ली बहुत छोटे थे जब 2007 का वर्ल्ड कप मुझे में इंडिया हाँ जब बाहर निकला था। हाँ तो और एक ऑस्ट्रेलिया की भी सीरीज थी, टेस्ट सीरीज, वहां पे भी ऐसा सीन हुआ था। तो वो चीज लेकिन हम 2007 में नहीं जी रहे हैं अभी, वी आर लिविंग इन करेक्ट। 2020। तो दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑडियंस, या ये चेंज यस। नॉट इन जस्ट ई स्पोर्ट्स, हर जगह कि भाई लोगों को समझना यस। चाहिए। अगर अगर ऐसा ही है तो फिर एक वो रहता है दैट विल बी हार्ड कि भाई तो अगर ऐसा ही है तो तुम हमारी जगह खेल लो आके, हाँ। अगर तो तुम परफॉर्म कर लो आके, क्योंकि जो भी जहां भी लेवल पे पहुंचा, दे हैव अंडरगोन करेक्ट। so many stages, so many difficulties, so many challenges, तो things are not easy। आपको घर पे बैठ के लग रहा होगा कि भाई ये ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे बेटर है तभी वहां पे है। इट्स अ यस। हार्श रियलिटी। एंड अगर आपको लगता है कि भाई सामने वाला कचड़ा का अच्छा नहीं खेल रहा है सारा कुछ, तो यू स्टार्ट डूइंग योर हार्ड वर्क कल से कि हाँ भाई इसको 2 महीने बाद मुझे रिप्लेस करके, मुझे अपना कंट्री का नाम अगर ये अच्छा नहीं कर पा रहा तो आई हैव टू डू, instead of spamming and messaging, that's totally wrong। So this is something which I want esports में change हो, या with the time ये थोड़ा maturity है। Excellent. I think very well said. And my last question to you is, after South Asia Championship, what is next? हमारा एम तो वर्ल्ड लीग का था, बट दिस वाज आवर वेरी फर्स्ट टूर्नामेंट एट Yes, इंटरनेशनल exactly. स्टेज। We did well in league stages, but in finals we couldn't do well because of some issues in the team. Like our players are not keeping well. Two of them are, undergoing COVID screening और ये सारा reasons थे, तो we couldn't do well। तो Mm-hmm. हमारा यही है कि अभी we have got PMCO Correct. अपकमिंग, तो उसको जीतने का, एंड लेटर ऑन इंडिया को फिर से नेक्स्ट वर्ल्ड लीग रहेगा उसमें रिप्रेजेंट करने का, एंड एक बहुत ही अच्छा स्पॉट इंडिया के लिए लाने का। Excellent. I think that sums it up all, whatever we spoke, and it's wish you all the best, Rocks. I like that name, Rocks. I think it's pretty nice. It's like while we were growing up, we were always in WWF. We used to see the Rock, like he used to stand like this. So yeah, it's like I chose this name, मैंने यही सोचा था कि भाई if somehow I feel to rock, then at least my name will rock। तो ऐसे ah. So excellent. So we now also know that how you chose the name. It's like, okay, I want to rock in this field, so my name is Rock. So excellent, excellent. Yogesh, aka Rocks. Thank you for being on the show, and keep playing, have fun, take care of your physical health and the mental health, and keep inspiring a lot of people. Esports is a it's a new sports. It's a new thing, but it has taken the world by storm, and you are making India proud by representing them. Wish you all the best to you and all your teammates, and have fun, take care, and talk to you soon. Thank you for having me over here। Yes. Nice of you। Thank you, buddy. Take care. Cheers. Thank you for watching. Thank you for liking, and thank you for sharing. But please do subscribe to our channel Sportsy Says on YouTube, and look at our social handles which also go by the same name, Sportsy Says. Do subscribe and spread the word. Thank you.